Today I'm starting a new chapter in political science. And this chapter is quite controversial. And इस chapter को when we are अभी specifically जब elections हुए हैं, तो this chapter makes you better understand the political nature in our country. The chapter is gender, religion and caste. All over the world, पूरी दुनिया में दो चीजें तो काफी डिस्क्रिमिनेशन में रहता है. One is gender, and the second one, in many of the countries we find the racism, color, like in South Africa. Whereas in some of the countries, even religious differences also makes conflicts. जैसे आपका श्रीलंका, वहां पर the foster religion is Buddhism, लेकिन वहां पर आपके तमिलियंस जो कि हिंदूज हैं, मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, they also are living. Then one thing which is unique to our country, जो हमारी कंट्री के लिए बिल्कुल यूनिक है, which is not there in other countries, वो है casteism. So when these kinds of issues, when people with these kinds of differences live in a country, अगर वो लोग साथ में मिलकर रहते हैं, तो पॉलिटिक्स में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, जो पॉलिटिक्स है उसमें क्या क्या चेंजेस आती हैं, या फिर व्हाट इज द ऑब्स्टिकल्स दे फेस. दैट इज आपका जेंडर, religion and caste. But we are going to study it only in context of our country. हम सिर्फ अपनी कंट्री के बारे में पढ़ेंगे. Yes, there are some examples of other countries, but we would be basically studying कि हमारी कंट्री में gender, then religion, then caste, ये कैसे कैसे हैं, मतलब in the society what are the forms they have taken, and how the politics has tried to deal with. I cannot say that they have dealt. I cannot say the solutions have been taken. But क्या क्या किया है? तो पहला हमारा है जेंडर. In the historic sense, if we talk about gender, तो जेंडर हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़ा यू कैन से टैबू है. टैबू मतलब एक स्टीरियोटाइप है कि ये काम लड़का ही कर सकता है, ये काम लड़की ही कर सकती है. आपके पेपर के क्वेश्चंस है बच्चा. आई विल बी जस्ट टेकिंग द एग्जांपल्स. इट इज अ वेरी कॉमन थिंग. हमारे यहाँ पर देयर इज अ हिरार्कियल सोशल डिविजन. हमारा मानना है वी आर लिविंग इन अ पेट्रियार्चियल सोसाइटी. पेट्रियार्चियल मतलब जहां जो मैन फादर है, ही इज द फिगर, मतलब वो घर का हेड माना जाता. तो उसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पर जो गर्ल्स के और बॉयज के जो काम है, दे आर डिवाइडेड. बाहर है, अगर बाहर जाना है तो लड़कों का काम, द गर्ल्स कैन नॉट गो. कमाना है तो लड़कों का काम है. इवन टिल डेट देयर आर पीपल हु बिलीव दैट अ वुमेन शुड अर्न ओनली फॉर फुलफिलिंग हर व्हाट यू कॉल एज time pass, just adding. She is not the main earning member, she is adding. ये हमारे यहाँ का एक बहुत ही, जिसको हम कहते हैं ना, अगली थॉट है, और जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर द विमेन फेस लॉट्स ऑफ
डिस्क्रिमिनेशन। अभी आपकी जब आप बुक खोलोगे तो यू विल बी फाइंडिंग ऑल दीज आंसर्स ऑल्सो। दे आर ट्रीटेड पुअरली, domestic violence, dowry deaths. Then, when it comes to education, the percentage of women is always less. हमारे यहाँ पर boys का overall I'm talking 76% literacy rate है and girls का आपका 56, because it is normally believed कि लड़कियां पढ़ के क्या करें। अगर आप कभी भी क्लास 10 का रिजल्ट देखोगे ना, यू विल ऑलवेज सी द गर्ल्स टॉप, but when it comes to 11th and 12th, then grads, and then even post grads में जाते 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 the number of girl students is less, and specifically the professional courses normally the girls don't go. मैकेनिकल ऐसे वाले जो इंजीनियरिंग होते हैं उनमें आपको लड़कियां बहुत कम मिलेंगी। आई हैड वन वेरी intelligent student. When she joined mechanical engineering, she said they had only 2 students in the entire branch. So this is a very common problem. And then अगर घर में कोई परेशानी होती है तो लड़कियां पहले नौकरी छोड़ दो, तुम घर को ध्यान करो, which उसकी वजह से see now if you see the boys, they work as ऑफिस में जाना, they are working, they are the income, और गर्ल्स जो लेडीज होती हैं they may be working at a lesser, and even अगर आप सैलरी देखते हो, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है आपके पेपर में, the wages of a woman is lesser than a man, and I'm not talking about the labors, I'm talking even about the celebrities. Look at the amount IPL में जो men को मिलता है and women को मिलता है। any profession, men are paid more, and we have this stereotype कि the men have to work, women का ठीक है घर में प्रॉब्लम है आप छोड़, it's not like छोड़ दो, instead of finding a solution we feel women should be. Even I have many teacher friends, those who are into the teaching profession only because they have to look after their family, not because they wanted to become a teacher, not because teaching was their passion. They became teacher because they wanted to look after the family. हम लड़कियों को उन्हीं प्रोफेशन में भेजते हैं जिनमें वो फैमिली को ज्यादा ध्यान दे। इट्स नॉट लाइक कि फैमिली को नहीं ध्यान देना चाहिए, बट विमेन्स interaction, women's participation should also be there. In France, 1946, the women got the right to vote. Of course, in India, we have the universal adult franchise since the beginning. अब इसका रिजल्ट क्या रहा है? The result is the women's participation in the politics or public is less. अभी आपको पता है क्लास 10 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज मेड सम रूल्स, जिसमें एक रूल है कि हर एक कंपनी में एक वुमेन डायरेक्टर का होना जरूरी है। सिमिलरली द पार्टिसिपेशन जो हमारा बिल है अभी पास हुआ है लास्ट ईयर, आप लोगों के उसमें आ जाएगा। लास्ट ईयर स्टूडेंट इट वाज इन मतलब कि द बिल वाज स्टिल नॉट पास, देन नाउ द रिजर्वेशन बिल हैज बीन पास्ड। इंप्लीमेंट नहीं हुआ है बट इट हैज बीन पास्ड। only in the local government, one marker question, the women have 1/3 of the seats reserved, जिसमें वही खड़ी हो सकती है for contesting the elections, whereas in the लोक सभा और अदर हमारा अभी implement नहीं हुआ। that is why there is more radical movements all around the world, जिसको हम बोलते हैं फेमिनिस्ट मूवमेंट। फेमिनिस्ट का मतलब क्या होता है? आपके राइट साइड में दिया हुआ है, while you will be doing the NCERT you'll see
Feminist मतलब a person who supports equality for female. Now we only in the Scandinav, ये जो आपका रेड कलर में लिखा मैंने, in the Scandinavian countries like Sweden, Norway and Finland, जो women participation है, it is more. जो विमेन पार्टिसिपेशन है वो आपका ज्यादा है. अदरवाइज इफ यू सी अदर एरियाज कहीं पर भी नहीं. हमारे यहाँ पर वी स्टिल हैव द पैट्रियार्चल सोसाइटी. पैट्रियार्चल मतलब वेयर द फादर और अ मेल मेंबर इज वैल्यूड मोर. तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल बिल क्या है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है? Yes, after 2014, the women members have increased. We have the women as the, in the great portfolios like finance minister. हमारी अभी जो finance minister, she is a woman. Then we have Smriti Irani. We have number of. But अगर हम overall देखें ना world में, तो अभी भी India is among the bottom. अभी भी the women, अब आज की डेट पर भी women are not considered as equal to men. मैं तो पर्सनली भी बहुत कुछ सहम भी करती हूँ और मैं देखती भी हूँ. इवन दो अ चीफ मिनिस्टर में बी अ वुमेन, बट उसके कैबिनेट में मेन होते हैं. द बिल हैज नाउ बीन पास्ड, बट अभी जो लोकसभा इलेक्शन हुए थे उसमें इम्प्लीमेंट नहीं हुआ. ये आपके पेपर का एक क्वेश्चन है कि व्हाट आर द डिफरेंट एट्रोसिटीज द विमेन फेस इन इंडिया. तो इंडिया के अंदर विमेन आर स्टिल हैरेस्ड, रेप, डाउरी डेथ्स, देन इनइक्वल ट्रीटमेंट आज भी उतना ही है. द लिटरेसी रेट, as I said, for male it is 76, for female it is only 54. Equal Remuneration Act, this was passed in 1976, अकॉर्डिंग टू विच दोनों को जो भी काम है दोनों को बराबर देना चाहिए. बट स्टिल इफ यू सी प्रैक्टिकली फीमेल्स आर पेड लेस. आज भी देर आर सो मेनी विलेजेस जहां पर बच्चा पैदा होने से पहले मार दिया जाता है इफ दे फाइंड इट टू बी फीमेल, जिसको हम बोलते हैं फीमेल इन्फेंटिसाइड या फिर फ्यूटिसाइड. And of course exploitation, harassment, violence, it's a very common. ये आपका 3 मार्कर क्वेश्चन है बोर्ड का. तो अभी तो कोशिश की नाउ हाउ, मतलब कि क्या किया है गवर्नमेंट ने. गवर्नमेंट इज ट्राइंग, बट होता क्या है, आपकी बुक में एक कार्टून है, द मेन डजंट अलाउ, बिकॉज इतने सालों से हम लोगों ने ये कहा है कि फीमेल्स आर, इनफैक्ट आई ऑलवेज स्टार्ट विद दिस चैप्टर. मैं कहती हूँ कि जब हम घर में पूजा करते हैं ना, तो हम कहते हैं भगवान हमें पैसा दो, भगवान हमें ज्ञान दो, भगवान अन्नपूर्णा दो. मतलब वी वांट टू have money, we want to have education, knowledge, food, but we don't want to respect women. That's the worst, scenario of India. And it's very common. ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं होता वहां नहीं होता, it is everywhere. In fact, I have heard people saying, ओ तुम नौकरी करती हो, ओ माय गॉड, तुम्हें मजबूरी होगी. क्यों भाई, मजबूरी में नौकरी की जाती है? मैंने तो कभी मजबूरी में नौकरी नहीं की थी. माय डॉटर्स आर वर्किंग, बट दे आर नॉट वर्किंग बिकॉज दे हैव टू फुलफिल देयर स्टमक. दे आर वर्किंग बिकॉज दे आर पैशनेट, बिकॉज दे आर इन प्रोफेशन. yesterday only I had an encounter. मतलब मैंने उसको छोड़ दिया बिकॉज नाउ डेज आई हैव मेड माई रेजोल्यूशन कि कोई कहता है कि भाई ऐसा ही होता है, मैं कहती हूँ हाँ ऐसा ही होता है, जाओ. कोई कहता है कि नहीं भाई, इफ दे डोंट अग्री आई से यस, डोंट अग्री. इफ दे से हाथी उड़ रहा, मैं कहती हूँ हाँ मेरे घर के आगे भी उड़ रहा था. नाउ आई डोंट काउंटर पार्ट.
But yesterday I had an encounter. Someone told me कि मैम इसको मुझे जो है फिजिक्स वाला में पढ़ाऊंगा. So I said कि मैम they have some financial crisis. So I said कि मैम आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, मैम कोई बात नहीं, हम कर्जा ले लेंगे, ये हमारा फ्यूचर है, मैम बेटा है. देन नेक्स्ट डे सेट कि मैम हमारे घर में प्रॉपर्टी की झगड़ा हो रहा है. तो आई सेड बाय प्रॉपर्टी का झगड़ा हो रहा है. तो शी सेड, मतलब फिर उन्होंने कहा कि मैम प्रॉपर्टी तो माँ बाप की प्रॉपर्टी हमारी है, हम बेटे हैं. फॉर 1 मिनट आई थॉट टू से व्हाई डू यू टीच योर चाइल्ड कि तुम्हारे पापा की प्रॉपर्टी तुम्हारी है. व्हाई डोंट यू टीच योर चाइल्ड फॉर सेल्फ फाइनेंस. देन आई सेड ओके मैम, टेक केयर ऑफ इट. बट स्टिल वी फीड दिस. गर्ल्स को मैरिज करके जाना है, दे आर नॉट, और मतलब कि, and boys are to look after us. There is no rule in that way. आप गर्ल्स हो बॉयज हो इक्वल पढ़ो. आज भी डाउरी इज एज इफ वी आर टेकिंग चॉकलेट्स. If a girl is educated and she can earn, she can contribute, then why we need dowry? Because dowry is not a curse. आगे देखो, the number of divorces today. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द गवर्नमेंट नीड्स टू पुट स्ट्रिक्टर लॉ. हमारे यहाँ रिम्यूनरेशन लॉ है, equal remuneration is there, but hardly even in the celebrity there is a data which says Kareena Kapoor, Katrina, Deepika and Alia, they are the 4 actors who are paid equivalent to their male counterpart. बाकियों को नहीं देते. You can just imagine. So we need stricter law. Abhi Indian government has introduced, the participation has increased, even the number of female candidates have increased. एजुकेशन के में भी इंक्रीज हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है. पीपल आर नाउ बिकमिंग अवेयर, बट स्टिल वी हैव टू कम आउट ऑफ दैट स्टीरियोटाइप कि ये काम सिर्फ मेल करता है, फीमेल नहीं करता. लाइक मेनी अ टाइम्स व्हेन देयर इज अ प्रॉब्लम इन द फैमिली, it is that the women has to leave the job and sit. Instead of finding a solution, we would only put the blame or we would put the responsibility. In 11th standard, you have a very beautiful chapter, Mother's Day, which tells that a mother is an unpaid servant. So we need to come out of all those. ये हमारा था जेंडर. आपके 4 क्वेश्चन इसमें से आते हैं. हाउ आर फीमेल या विमेन मतलब कि डिस्क्रिमिनेटेड, द पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन. देन आपका ये वाला जो क्वेश्चन है मतलब कि जो विमेन्स रोल है. देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेंडर, सॉरी, सेक्सुअल डिविजन ऑफ लेबर, यानी कि ये काम लड़का ही कर सकता है, ये काम लड़की ही कर सकती है. सेकेंड इज रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स. थोड़ा सा सेंसिटिव टॉपिक है, क्लास 10. Last year, I had the student who had really asked many questions in this particular one. In every country, definitely you have different religions. और India में तो religion जो है, there are number of. And then there is one concept, community. मतलब अपने तरीके के लोग. Now the community can be based on a caste, community can be based on the religion. तो सबसे पहला गांधी जी said religion can never be separated from politics. Now it doesn't mean that religion का मतलब ये है कि you need to ask vote, you need to divide the country on the basis of religion. It means politics में जो हमारा philosophy है to treat everyone equal, that is what religion also teaches us. रिलीजन भी हमें कहता है कि देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन. बट इफ यू लुक इनटू द रियल फैक्टर,
into the real factor. 3 marker आपके सामने लिखा है. There are people who believe in one particular community or religion. उनका मानना होता है कि जो नेशन है it should be based on one particular religion, like श्रीलंका. एंड कई बार लोग जो है रिलीजन के नाम पर स्प्रेड हेट्रेड, जिसको हम कम्युनल पॉलिटिक्स कहते हैं. दे बिलीव दैट वन रिलीजन इज सुपीरियर टू अनदर. अब आप कैसे कह सकते हो कि ये रिलीजन गंदा है, ये रिलीजन अच्छा है? नो रिलीजन टीचेस अस हेट्रेड. लुक इनटू एनी स्क्रिप्चर, कोई भी स्क्रिप्चर आप उठाइए. In every religion, the first thing is we all are children of God. But जब हम पॉलिटिक्स में इस मुद्दे को, रिलीजन को एज अवर एक्सप्रेशन ले लेते हैं, कम्युनल पॉलिटिक्स को. एंड देयर हैव बीन मेनी अ टाइम्स जब ह्यूमन राइट्स ने बोला है, जब ह्यूमन राइट्स ने बोला है कि इन एवरी कम्युनल रायट जो लोग मरते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर फ्रॉम अ रिलीजियस माइनॉरिटीज. इंडिया के अंदर आपका 1 मार्कर क्वेश्चन. इंडिया के अंदर ऐसे कई बार हुआ है, बट द वर्स्ट वाज द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947 when India was separated on the basis of two nation theory. आपका पंजाब, जम्मू कश्मीर, वो वाला जो एरिया था, द पंजाब एरिया, देन अमृतसर, लाहौर, एंड इस तरफ आपका जो आज हमारा बांग्लादेश है, वो वाला एरिया. बिकॉज यहाँ आपके मुस्लिम मेजोरिटी ज्यादा थे, तो दीज 2 एरियाज वर डिमार्केटेड एज पाकिस्तान. ये तो पाकिस्तान से बांग्लादेश आपका 1971 में बना था. अर्लियर इट वाज कॉल्ड एज ईस्ट पाकिस्तान. तो such religious riots have been there. Not only this, there have been other 2 or 3, मतलब इंडिया के अंदर कई बार ऐसा रहा है. Now what happens? A repeated question. Communalism can take various forms in politics. अब इसमें उल्टा उल्टा क्वेश्चन आता है. मतलब अगर आप कम्युनलिज्म को फॉर्म करते हो, मतलब व्हाट इज कम्युनलिज्म? व्हेन यू बिलीव दैट वन रिलीजन इज सुपरसीडिंग अदर. मतलब मेरा रिलीजन बेटर है दूसरे के रिलीजन, और आप उसको पॉलिटिक्स में लेकर आते हो. आप उस मतलब कि नाम से लोगों में जो हो हेट्रेड फैलाते हो. यू यूज द सिंबल, यू यूज द रिलीजियस लीडर्स, यू यूज रिलीजियस लाइन्स, एंड आप ये स्टीरियोटाइप करवाते हो कि आपका रिलीजन बेटर है, एंड यू सीक द वोट्स. आप उस नाम से वोट को लेते हो जब आप रिलीजन को अपना मुद्दा बना लेते हो. दैट इज आपका कम्युनलिज्म, एंड इट कैन टेक वेरियस फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स. पूरा जैसा ये लिखा हुआ ना, ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं. इट्स देयर इन द प्रिंटेड नोट्स आल्सो. एंड मेनी टाइम्स द लीडर्स डू इट. वो लोग अपने रिलीजन के नाम से अब वो मतलब वो दिखाना चाहते हैं कि आवर रिलीजन हैज नॉट बीन गिवन इम्पोर्टेंस, और आवर रिलीजन इज बेटर देन अदर्स, एंड दे ट्राई टू. और जब ऐसा होता है कि एक रिलीजन को दूसरे रिलीजन से बड़ा दिखाया जाता है, तो लोगों में हेट्रेड होता है, मतभेद होता है, एंड इट लीड्स टू वायलेंस, लाइक इंडिया के अंदर पार्टीशन. बट इन इंडिया वन थिंग इज गुड, और वो ये है कि द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स इंडिया अ सेक्युलर स्टेट. इन जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था क्लास 10, उस वक्त में सेक्युलर वर्ड वाज नॉट एडेड. जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस वक्त इट वाज डेमोक्रेटिक सोशल रिपब्लिक. द वर्ड सेक्युलर वाज लेटर ऑन एडेड इन 1970.
तो सेक्युलर स्टेट से क्या फायदा होता? व्हाट डज इट सेक्युलर स्टेट मीन? मीन्स इट डजंट फोस्टर एनी रिलीजन। जैसे श्रीलंका का स्पेशल एक्ट कहता है कि उनका बुद्धिज्म इज द रिलीजन, नेपाल का हिंदुइज्म, पाकिस्तान इस्लाम, बट इन इंडिया we don't have any official religion, and each of the citizens have the right to practice, profess and propagate our own religion. गवर्नमेंट या फिर कोई भी पॉलिटिकल फिगर हमें कन्वर्जन के लिए कभी नहीं बोलेगी। वी आर फ्री। थर्ड, द गवर्नमेंट डजंट हैव एनी डिस्क्रिमिनेशन। मतलब अगर हम गवर्नमेंट की नौकरी, यहाँ डिस्क्रिमिनेशन होता है when it comes to the education sector, when it comes to the so the government doesn't have any discrimination. Any person can hold any position. हमारे यहाँ पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ज्ञानी जैल सिंह belong to Sikh, Dr. Abdul Kalam belong to Islam, but they were the president of India. So it doesn't hold any discrimination. Any person can hold any position irrespective of his religion. It gives equal opportunities to all. But we have some religions which we call as minorities. Now, what is the meaning of minorities? हम लोग minorities को एक गलत तरीके से लेते हैं। Minorities का मतलब होता है कि पॉपुलेशन के ओवरऑल जो नंबर है उसमें उनका नंबर कम होता है। लाइक इन अ स्कूल 30 boys are there and 10 girls are there, तो 10 girls are minorities। उसका मतलब ये नहीं कि वो लोग किसी गलत उसमें है। That means they are less in number। तो हमारे यहाँ we have the Christians, we have the Islam, we have Sikh। तो इनके लिए the government has given special status की to promote equality। The government allows them to establish their own educational institutions। फॉर एग्जाम्पल सेंट स्टीफेंस, जो आपका सबसे रिनोन कॉलेज है इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, इट हैज बीन established for the Christian minorities, even though it's a very famous college, everyone wants to go, but it was established। ऐसे कई मतलब कि schools established किए गए हैं, colleges किए गए हैं to promote that particular religion, to give them equality। वैसे गवर्नमेंट डजंट इंटरवीन बट इट गिव्स स्पेशल एड्स टू दीज, ताकि वो लोग अपने एरिया को डेवलप कर सकें। तो इंडिया इज कॉल्ड एज अ सेक्युलर स्टेट। आपके पेपर के अंदर अगेन इट इज अ 3 मार्कर क्वेश्चन एंड यू हैव टू राइट ऑल दीज 4 पॉइंट्स। व्हाई इंडिया इज कॉल्ड एज अ सेक्युलर स्टेट? मींस इट डजंट profess any religion, it doesn't foster any religion। नेक्स्ट, पहला हमने पढ़ा जेंडर, द जेंडर बायस, द डिफरेंस बिटवीन मेन एंड विमेन, हाउ फीमेल्स आर डिस्क्रिमिनेटेड, व्हाट इज देयर पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस। सेकेंड हमने पढ़ा कम्युनलिज्म, यानी कि when we supersede religion, when politics is followed on the basis of religion। देन थर्ड हमारा आता है कास्ट। कास्ट सिस्टम इज यूनिक टू इंडिया एंड दिस happened years before। It is said that the society was divided on the basis of the work they did। For example, it was said that those who had attained education, knowledge, or those who are into the priest work, they all will be categorized as Brahmin। Then those who are into the valor, courage, fight, they would be
said as Kshatriya. Then those who are into accounts, trade, business, Vaishya. And last but not the least, outcast, Shudra, those who did the errand jobs. And this was done at that moment जब इंडिया के अंदर how many people were there? And इन लोगों को, ये जो जिनको हम outcast कहते हैं, they were not allowed to enter into the village. They were not allowed to draw water from the well. They were not allowed to enter into the temples. In fact, even before independence, there have been incidents जब इनके यहाँ पर डेथ हो जाती थी, तो they had to throw their dead body in the field जहाँ कौवे इसको खा जाते. That was the worst scenario. Then marriages are not allowed. Marriages are not allowed. आज भी है, अभी हम पढ़ेंगे, ये क्वेश्चन वाइज पढ़ेंगे हम. Normally, it is believed that we should have the same community, same caste. There were many people, those who raised their voice against such discrimination, क्योंकि इनको inhuman तरीके से treat किया जाता है. It's not like कि division of caste. It is division of humans. Dr. Ambedkar के अगर if you are reading his autobiography, you will find that during those period, the जो शूद्र बोला जाता था, they were not allowed to sit with the normal people. In fact, आपने अगर 9th standard में आप लोगों ने भी पढ़ा है this even Dr. Abdul Kalam का, so they were not allowed to sit along with their counterparts. They were asked to sweep the floor. They were asked to do those jobs which normally भी हम नहीं करते. नेशनलिज्म वाला जो चैप्टर आप लोग पढ़ोगे, उसमें भी आप लोग पढ़ोगे, यू विल स्टडी कि इन लोगों को पॉलिटिक्स में भी अलाउ नहीं करते. अब आपका आता पहला क्वेश्चन जो कि 3 मार्क का आया हुआ है अभी तक. ड्यू टू द मॉडर्नाइजेशन द कास्ट सिस्टम हैज अंडरगॉन चेंजेस. बच्चा, ये जो मैंने ऊपर लिखे हैं ना, ये आपके क्वेश्चंस हैं एंड दे आर वेरी कंफ्यूजिंग, तो थोड़ा ध्यान करके समझिए. फॉर द पास्ट few years, the caste system has undergone changes. Why? पहली बात तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया है. We are all now into urbanization. आपके बुक में राइट साइड में दिया हुआ है. अर्बनाइजेशन का मतलब होता है कि अब हम लोग जो हैं, we are living in the urban areas. तो यहाँ पर hardly anyone knows anyone. गांव के अंदर तो नॉर्मली ऐसा होता है, गांव के अंदर what they do is they make it in this way. जो मंदिर के पास होते हैं, they are all belonging to Brahman. Then उसके बाद नेक्स्ट कास्ट, उसके बाद नेक्स्ट कास्ट, एंड जो बिल्कुल आउटकास्ट होते हैं, they live outside the villages. इवन हमारे चेन्नई के अंदर भी है, मतलब जो बिकॉज वी बिलोंग टू ब्राह्मण कास्ट, तो जो आपका टेम्पल है उसके एकदम सामने जो आपके व्हाट यू कॉल स्ट्रीट्स है, दे बिलोंग टू द हाईएस्ट कास्ट हमारा. वेरस उसके नेक्स्ट जहां शिव मंदिर है वो आपका नेक्स्ट, उसके आगे. तो दिस इज हाउ इन द अर्लियर स्टेजेस द. तो अगर आप कहते हो कि आई एम फ्रॉम अग्रहारन स्ट्रीट, तो दैट मीन्स पीपल वुड अंडरस्टैंड दैट यू आर अ ब्राह्मण, आप ब्राह्मण हो. विलेजेस में ऐसा होता था, बट नाउ वी आर इन अर्बन एरियाज, तो यहाँ पर तो ये सब चीजें नहीं है. वी डोंट हैव, वी डोंट नो.
सेकेंडली, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी। अभी उस जमाने में नाई के दुकान जाना वॉज कंसिडर्ड एज समथिंग वेरी बैड। मतलब नाई की दुकान जाने के बाद नॉर्मली पीपल वुड बी गोइंग बैकवर्ड और नहाते थे। टुडे हेयर स्टाइलिस्ट सबसे ज्यादा कमाता है। तो ड्यू टू लिटरेसी लेवल, ड्यू टू ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, ये जो नोशंस है थोड़े थोड़े चेंज हुए। एंड देन इन द विलेजेस ऑल्सो, पहले लैंडलॉर्ड्स होते थे, अब वो सिस्टम हमारा खत्म हो गया है। तो टू सम एक्सटेंट कास्ट हैज undergone changes, yet caste has not completely disappeared। इसका मतलब ये नहीं कि चेंज बिल्कुल खत्म हो गया है। ये सारे अलग अलग क्वेश्चंस हैं क्लास 10। इवन नाउ पीपल प्रिफर मैरिजेस विद इन कास्ट। अनटचेबिलिटी आज भी ओपनली है, ओपनली है। यू मस्ट हैव सीन, आई हैव सीन, एवरीवेयर इट इज ओपन। इफ यू look into the history of our country, some people belonging to certain caste had the accessibility to education, but बाकियों को नहीं था। और उसी का एक रिजल्ट है क्लास 10, द रिजर्वेशन सिस्टम। क्योंकि अगर आप देखो तो जो लोग पर्टिकुलरली अपर कास्ट को बिलोंग करते थे, दे हैव अटेन्ड द इकोनॉमिक स्टेटस, बट दोज हु बिलोंग टू द अंडर प्रिविलेज्ड कास्ट, उनका इकोनॉमिक स्टेटस अभी भी उतना नहीं है। Therefore, the government had, the constitution had given the reservation, जिससे कि इन लोगों को एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिले। दैट इज वन अनदर प्रॉब्लम की करप्शन की वजह से एक्चुअल में इन लोगों को नहीं मिलता। दो सीट्स आर बॉट एज मैनेजमेंट सीट्स, उन सीट्स पर इनको नहीं, मैनेजमेंट कोटा के थ्रू रिच लोगों को मिल जाता। I have this example in my own school. In every education institute, 5% of the overall seat has to be given to particular underprivileged caste. स्कूल वाले क्या करते हैं, उसमें पैसा लेकर दे शो दैट, गवर्नमेंट को वो दिखाते हैं कि इट हैज बीन अलॉटेड टू द अंडर प्रिविलेज, बट एक्चुअल में वो होता नहीं। तो स्टिल वो जो डिफरेंस है ना कास्टिज्म का, वो अभी हमारा पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ। Now comes two very, very important question, which is a 5 marker question. और ये दोनों क्वेश्चन आपके ऑप्शन में आते। ध्यान से, पहला है, कास्ट कैन टेक वेरियस फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स। मतलब पॉलिटिकल फिगर्स जो है वो लोग कास्ट को यूज करते हैं टू गेट द वोट, जो कि अभी भी इट हैज नॉट बिकम सक्सेसफुल। और दूसरा क्वेश्चन होता है, विद इन कास्ट देयर इज पॉलिटिक्स, तो डोंट कंफ्यूज देम। तो फर्स्ट इज, कास्ट कैन टेक वेरियस फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स। मतलब पॉलिटिक्स के अंदर जो पॉलिटिशियंस होते हैं, दे व्हाट डू दे डू इज, जब वो किसी एक पर्टिकुलर एरिया को टारगेट कर रहे हैं, तो वो वहां देखते हैं कि किस तरीके के लोग वहां रहते हैं। दे फाइंड आउट, दे ट्राई टू फाइंड, एंड व्हेन दे फाइंड कि उस वहां पर जो है एक पर्टिकुलर अंडर प्रिविलेज कास्ट है या अपर कास्ट है, तो वो अपने उसी कैंडिडेट को वहां का रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं, जिससे उनको ज्यादा वोट मिल जाए। Like in a particular constituency, if the number of people belonging to upper caste ज्यादा है, तो वो upper caste को लग देंगे। If they find कि वहां पर lower caste है, तो they would put, then they appeal in the name of caste। But एक अच्छी चीज क्या है, that in India we have the universal adult franchise। तो कोई ऐसा नहीं हो सकता कि एक कास्ट जो है
वही वोटिंग कर रहा है। एंड अगर आप लोग डेटा देखते हो, अभी लोकसभा का देख सकते हो, किसी भी एक कास्ट में नो कॉन्स्टिट्यूएंसी एवर गेट्स मेजोरिटी फ्रॉम वन कास्ट। मतलब मान लो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो आपका ये नहीं होगा कि भाई जिन लोगों ने इस पार्टी को वोट किया है दे आर बिलोंगिंग टू दिस कास्ट, दे विल बिलोंग टू डिफरेंट कास्ट। बिकॉज हम लोग वोटिंग जो है काम के लिए करते हैं, कास्ट के लिए नहीं करते हैं। A person who is belonging to an underprivileged will vote to that person अगर उसको लगता है उसका काम अच्छा है। वो इसीलिए वोट नहीं करता है क्योंकि उसको कास्ट के नाम पर उसे वोट मांगा गया है। ऐसे भी लोग होते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग जो है काम को देखकर वोट करते। एंड देन नो पार्टी नेवर विंस वोट ऑफ ऑल द वोटर्स। अभी आप एनालाइज करो जो इस वक्त का लोकसभा का रिजल्ट है, आप देखो समटाइम्स देर इज रिप्रेजेंटेशन होता है जिनसे हम उम्मीद नहीं करते वो लोग वोट करते हैं। और अगर मान लो कि कास्ट या रिलीजन हमारा बेस होता तो क्या पार्टीज हमेशा जीतती नहीं? व्हाई देयर इज लेस? इस बार भी आप देख लो द नंबर ऑफ वोट्स हैव रिड्यूस्ड। ऐसा क्यों है? क्यों है ऐसा? रूलिंग पार्टी को पूरा मेजोरिटी क्यों नहीं मिलता? तो you cannot say that people believe in caste, but politicians they take advantage of caste. ये जो क्वेश्चन है कास्ट कैन टेक वेरियस फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स का मतलब होता है मेनी अ टाइम जो आपके पॉलिटिशियंस हैं दे टेक एडवांटेज ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया एंड दे ट्राई टू मतलब कि अट्रैक्ट द पीपल इन द नेम ऑफ कास्ट। बट द रिजल्ट्स हैव नॉट बीन लाइक दैट। इवन अगर उन्होंने ऐसा कहा भी है तो कभी ऐसा जरूरी नहीं है कि वहां के सब लोगों ने उस इंसान को वोट कर दिया है। Even the person may have given lots of promises, maybe that person loses because people believe in work, not in such false promises. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है पॉलिटिक्स इन कास्ट। मतलब ये जो पहले हमने पढ़ा है ये है कि पॉलिटिशियंस कास्ट को कैसे यूज करते हैं, और ये जो हम पढ़ेंगे ये है कि कास्ट सिस्टम के अंदर भी आजकल जो है हेराफेरी होने लग गया है, पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंस कर रहा है। लोग अपने ही मतलब नाउ ईच कास्ट इज ट्राइंग टू बिगर मतलब बिकम बिगर विद सब कास्ट। नए नए कास्ट के इंट्रोडक्शन हो रहे हैं, दो तीन कास्ट एंटर करते हैं कोएलिशन में। पहले हमारे पास फॉरवर्ड बैकवर्ड टाइप कास्ट नहीं होते थे, आजकल फॉरवर्ड कास्ट बहुत बैकवर्ड कास्ट करके आ रहे हैं। तो इवन विद इन द कास्ट द पीपल आर ट्राइंग टू, कुछ जगहों पे तो दो तीन कास्ट मिलकर अपने आप को एक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एंड कुछ जगहों पर कास्ट के अंदर ही वो कहते हैं नहीं ये हमारे अंदर ही मतलब ब्राह्मण के अंदर ही ये वाले ब्राह्मण है, ये वाले ब्राह्मण है। दे आर ट्राइंग टू। तो कास्ट प्लेस different roles. Sometimes it definitely gives, you know, advantage, but sometimes it can also result in tension, conflict. क्योंकि जब हम कहते हैं कि भाई ये इस कास्ट का है and we don't like that caste, we don't like people to sit with us, then what happens? It results in tension. जैसे आपका रिलीजन टेंशन क्रिएट करता है कास्ट भी करता है। सो दैट इज व्हाई these three one मतलब हमने पहला पढ़ा था जेंडर। when gender influences the politics there is problem because जेंडर की वजह से पहली बात इंडिया के अंदर ड्यू टू जेंडर देयर हैव बीन मेनी डिस्क्रिमिनेशंस। आपके पेपर का क्वेश्चन कि कैसे डिस्क्रिमिनेट हुआ, लिटरेसी लेवल, देन आपका वर्किंग वेजेस, सब जो है इनमें विमेन आर डिस्क्रिमिनेटेड। एंड ड्यू टू दैट इवन आप अब नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ोगे, in that it is given that the Indian National Congress
and many leaders from the Indian National Congress did not want the women should come in the forefront during the movement. आपका nationalism in India में पढ़ोगे आप. और इसीलिए even though women participated, women went to jail, women even had the लाठी charge, लेकिन उनका जो representation था that was less. And for years they have been, और इसकी वजह से जो political participation of women it is less. तो उसके लिए हमने क्या किया है? The government has tried to increase the number of women's share. The government has passed the bill, reservation bill. 1/3 of the seats are reserved exclusively for women in what you say local government. और आप देखो लोकल गवर्नमेंट में सरपंच ये सब लोग जो है विमेन होती हैं. The second is religion, a very sensitive issue. In religion, though in many countries they have stated their country as belonging to one religion, but India में ऐसा नहीं है. लेकिन आज भी अगर हम देखते हैं तो we need to regulate, क्योंकि religion को कई बार लोग जो है पॉलिटिक्स में लेकर आते हैं. They try to stereotype other religions. They try to supersede their own religion. अपनी religion को बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं, अपने religion के लीडर सिंबल इन सबको लेकर वोट मांगने की कोशिश करते हैं, which may lead to violence. But religion has never been हमारा जो है एक वो नहीं बना है. Why? Because Constitution has stated India as a secular state. We don't have any official religion. We don't have, the Constitution does not discriminate people on the basis of the religion. There are equal opportunities for all. In fact, the Constitution has even given special power to the country, to the state, कि वो लोग जो है कुछ रिलीजन जो पीछे रह गए हैं उनको आगे रहने के लिए कुछ स्पेशल सब्सिडीज भी देते हैं. The third is caste system, which is of course unique to India. And according to this caste system, there have been some caste. एक caste ऐसा है जिसको बिल्कुल हमने outcast बना रखा है. And but due to मॉडर्नाइजेशन, अर्बनाइजेशन, ऑक्युपेशनल मोबिलिटी, कास्ट सिस्टम में काफी चेंजेस आए हैं. लेकिन फिर भी अभी कंप्लीटली नहीं, आज भी हम कास्ट को मानते हैं. टिल डेट अनटचेबिलिटी और इकोनॉमिक स्टेटस बिलोंगिंग टू वन पर्टिकुलर कास्ट हैज नॉट कंप्लीटली डिमिनिश्ड. तो जब हम इसको पॉलिटिक्स में लेकर आते हैं तो क्या होता है? जो पॉलिटिशियंस होते हैं समटाइम्स दे मेक इट श्योर कि वो लोग अपने कैंडिडेट्स को उस कास्ट से लेकर आए जिस एरिया में उस कास्ट के लोग ज्यादा हैं. समटाइम्स दे अपील इन द नेम ऑफ कास्ट. लेकिन अगर हम रिजल्ट्स देखते हैं तो कास्ट हैज नेवर वन. इट इज द पार्टी विच हैज वन. इट इज द person who has won. It is not a caste or religion which has won. और अगर कास्ट या रिलीजन हमारा पॉलिटिक्स का बेस होता तो शायद रूलिंग पार्टी कभी हारती नहीं. तो इट पीपल वोट फॉर द वर्क, नॉट फॉर कास्ट. देन फॉर द पास्ट फ्यू इयर्स कास्ट के अंदर भी जो हमारा कास्ट सिस्टम ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है उनमें भी काफी चेंजेस आए हैं. उसको हम बोलते हैं पॉलिटिक्स इन कास्ट. Now there are new caste, forward, backward. New caste मतलब कि एक कास्ट के अंदर सब कास्ट इंक्लूड हो रहे हैं. लेकिन ड्यू टू ऑल द व्हाट यू से रिजर्वेशन, सेक्युलर स्टेट, देन मतलब कि इक्वल स्टेटस, adult universal adult franchise, gender, caste or religion have never influenced the Indian politics completely. हाँ लेते हैं but not completely.
And when we are dealing in the government as a politician, we must see कि no one is disadvantaged. क्योंकि ऐसा होगा तो there might be conflict, there might be tension, there might be violence, there might be unrest. तो in democracy overall, इस मतलब पूरे चैप्टर का क्या मतलब है कि इन डेमोक्रेसी सच काइंड ऑफ चैलेंजेस डू कम, ऐसे चैलेंजेस आते हैं, बट द पॉलिटिशियंस हैव टू वेरी केयरफुली हैंडल देम सो दैट द कंट्री इज नॉट डिवाइडेड. अगर हम लोग देखें, कई कंट्रीज ऐसी हैं जो रिलीजियस ग्राउंड की वजह से या फिर किसी और वजह से दे हैव बीन डिवाइडेड, तो वो नहीं होना चाहिए. इन डेमोक्रेसी एवरीवन शुड बी गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटीज, everyone should be treated equally. That is the chapter gender, religion and caste. In the next class we would start the chapter along with NCERT. Even if you go with these notes or the printed notes, you don't require to even open the book. It's a crystal crisp clear आपके सामने है. और क्वेश्चंस बिल्कुल जो मैंने ऐसे इनको जो हाईलाइट कर रखा, these are the questions which come in the exam. If you learn it, understand the question and learn it, then जैसे आपके जेंडर वाले से क्वेश्चन आता है कि women are still discriminated, तो आपको उसमें women discrimination का क्वेश्चन बताना है. Then what is the role of women in the political form, वो आपको बताना है. दोनों आपका जो है it comes in options. Then from the caste आपका जो है religion, ये वाला आपका religion वाला जो है communalism can take various forms, ये 5 marker में आया हुआ है. Results come in 5 marker and बाकी इसमें से 1 mark के questions ज्यादा होंगे. Then how can you say India is a secular state, या फिर the constitution states India is a secular state, explain. तो ये इसका सेकेंड क्वेश्चन है. देन कास्ट वाले में से कास्ट हैज नॉट कंप्लीटली डिसअपियर्ड, कास्ट कैन टेक वेरियस फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स. ये वाले क्वेश्चन जो हैं दोनों ऑप्शंस में. तो दीज आर द डायरेक्ट क्वेश्चंस व्हिच आर कम इन द क्वेश्चन. Most of the time you have a 3 marker or 5 marker question from this particular chapter. Direct questions. So these are the questions. If you go through the notes, you will understand it. So we will be doing the same question in the next class on Tuesday. That is gender, religion, and caste.